Yes, so good afternoon, everyone. In today's lecture, we are going to discuss about the new concept called mole. Okay, mole concept. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ये वर्ड क्या है, राइट? व्हाट इज मोल? सो मोल ये जो है, ये एक हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक टर्म है जिससे हमको एक स्पेसिफिक नंबर समझ में आता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करते हैं वर्ड डजन, है ना, ये वर्ड जो है जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा है डजन, ये वर्ड हम हमारे डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जाता है 1 डजन, है ना, 1 डजन मीन्स हाउ मेनी नंबर चिल्ड्रन? 1 डजन मीन्स हाउ मेनी नंबर? इफ यू नो जस्ट थिंक। Yes, so 1 dozen means, yes, correct, it's a 12 number, right? 1 dozen means 12 number, right? So half dozen means what? 0.5 dozen means half dozen. Yes, means how many numbers, children? 6 number. Okay, if I tell you to bring half dozen of apple, then how many apples will you bring? You will bring 6 apples. Exactly. Right? You will bring 6 apples from the market. In the same way, children, in the same way, 1 mole is equals to how many number? 6.022 into 10 raised to 23 numbers. Listen my sentence carefully and keep this value always in your mind. Whenever we talk about 1 mole, it means we are talking about the number 6.022 into 10 raised to 23. Remember this relation, children. Even sometime, yes. So sometime 1 mole that equals to atomic mass. Remember, children, that equals to atomic mass of a particular atom also. Okay, so here we have complete 3 formulas with respect to the mole. So you have to remember all those formula because the same we are going to use in the numericals in the coming topic. Okay, so 1 mole मतलब क्या होता है बच्चों? 6.022 into 10 raised to 23 numbers or atomic mass of a particular atom. ठीक है, अब पहले हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करेंगे फर्स्ट फॉर्मूले पे, देन वी विल गो फॉर द सेकंड। तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई योर लॉजिक फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। क्योंकि कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल्स में जहाँ पे फॉर्मूला रटा हुआ काम नहीं करता है। कितना भी फॉर्मूला आप रट लो, दैट विल नॉट वर्क। आपका कॉमन सेंस, आपका थिंकिंग एबिलिटी वहां पर काम करता है। तो वो चीजें मैं आज आपको सिखाऊंगी। सो हम कुछ पहले बेसिक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट, actually I just want to repeat because some children are still joining, right? So 1 mole of anything, student, 1 mole of anything is equal to how many number? 6.022 into 10 raised to 23. All right, अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आई हैव 1 mole of 1 rupees coin, I have 1 mole of 1 rupees coins, it means how many 1 rupees coins I have? This will be the same value.
Means how many 1 rupees coin I have? I have 6.022 into 10 raised to 23 numbers of 1 rupees of coin. तो कोई भी चीज अगर आप 1 मोल की बात करते हैं, मतलब कितने नंबर है उस चीज के? दिस मेनी नंबर्स, 6.022 into 10 raised to 23 numbers. Okay, student. Now, second question. Okay, now you can answer in the chat box, children. So be ready for writing the answer. My second question is, I have 1 mole of water in a beaker. Listen carefully. I have 1 mole of water in a beaker. It means in that particular beaker, in that particular glass beaker, how many water molecules are there? How many water molecules are there? As I told you, 1 mole is equals to that particular number. I told you, yes, correct. So 1 mole of water मतलब क्या कि 1 mole of water जो है उसमें water के कितने molecules है? ये पूरा एक molecule हो जाता है. Listen everyone very carefully क्योंकि मेरा second question ये first question पे base करेगा. अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से समझ गए तो ही आप सेकेंड का सही आंसर दे सकते हैं. देखो क्या बोला मैंने, 1 मोल ऑफ वाटर है मतलब कितने मॉलिक्यूल से? H2O के. क्यों मैं फोकस कर रही हूँ इस वर्ड पर? H2O के कितने मॉलिक्यूल्स? कितने? 6.022 into 10 raised to 23. ओके इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स मतलब पूरा ये मॉलिक्यूल H2O. ऐसे कितने H2O? ऐसे दिस मेनी नंबर्स ऑफ H2O. ओके अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? क्वेश्चन चेंज किया है मैंने. अब मैं वाटर मॉलिक्यूल के नंबर नहीं पूछ रही हूँ, अब मैं हाइड्रोजन के नंबर पूछ रही हूँ. देन हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आई हैव? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आई हैव? नाउ लिसन carefully what I'm telling. 6.022 into 10 raised to 23 number of H2O मतलब ही 1 mole of H2O. ध्यान दो सारे बच्चे अच्छे से. दिस मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब ही 1 मोल ऑफ वाटर बराबर. मतलब इस 1 मोल ऑफ वाटर में ये पूरे के पूरे H2O के कितने मॉलिक्यूल है? इतने सारे मॉलिक्यूल है. तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने? तो ध्यान दो, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं? देखो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, है ना? एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं. तो 6.022 into 10 raised to 23 H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम्स? तो what you have to do? You have to multiply this value by 2. Then what answer you will get? 12.044 into 10 raised to 23 hydrogen atoms are there. Did you get this point, children? I want a quick response. Did you get this point that why we have multiplied by number 2? ओके इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. सिंपल सा एग्जांपल, ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है ना तो अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं आपको छोटी छोटी बातों से समझाऊंगी. यहाँ देखो, आई हैव 1 वाटर मॉलिक्यूल. 1 मोल को थोड़ा साइड में रख दो, 1 मोल को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, फॉरगेट अबाउट इट. फोकस ऑन दिस न्यू सेंटेंस नाउ. आई हैव 1 वाटर मॉलिक्यूल. मेरे पास एक ही वाटर मॉलिक्यूल है, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल. इसमें हाइड्रोजन कितने हैं बताओ मुझे?
कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन। ओके, 1 ऑक्सीजन आई हैव। अब नेक्स्ट, I have 2 water molecules. I have 2 water molecules. वाटर के कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास? 2 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन कितने हैं टोटल मेरे पास? इसको भूल जाओ, अभी पहले वाले को खत्म कर दो। ये हो गया क्वेश्चन, ये हम समझ चुके हैं। अब सेकंड पे फोकस करो। 2 वाटर मॉलिक्यूल मतलब कितने हाइड्रोजन? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पहले 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी भाई एक वाटर मॉलिक्यूल में है, ऐसे मेरे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो मैं इसको करूंगी मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो मेरे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल हुए टोटल? 4, सॉरी कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हुए? 4 हाइड्रोजन, क्योंकि ऑलरेडी 2 है और ऐसे 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया मैंने तो 4 हाइड्रोजन आ गए, है ना। ऐसे नहीं समझता है तो ऐसे देखो, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल? ये 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए? ये एक और ये एक, 2 ऑक्सीजन हो गए, है ना। अब दूसरी बात, अब मेरे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल है, ये 1, ये 2 और ये 3 वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन होंगे। बहुत ही सिंपल है ना। 3 वाटर मॉलिक्यूल बोला मैंने, तो एक वाटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 हाइड्रोजन के एटम है। ऐसा नहीं समझ में आया? ऊपर देखो, ये 2, ये 2, 4 हो गए, ये 2, 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ओके, अब डायरेक्ट करेंगे हम। नाउ आई हैव 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, आई हैव 5 water molecules, means how many hydrogen I have? One water molecule contain 2 hydrogen, so 5 water molecule contain 10 hydrogen, very simple. And how many oxygen? 5 oxygen, 5 oxygen। ओके, तो वैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आई हैव 1 मोल ऑफ वाटर, मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स? वाटर के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो भाई उसमें हाइड्रोजन कितने? तो एक वाटर में कितने हाइड्रोजन होते हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितने वाटर है? 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, है ना। पूरे वाटर मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, वो तो हमको पता है कि 1 मोल मतलब इतना। बट एक वाटर मॉलिक्यूल में अगर 2 हाइड्रोजन होते हैं, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी विल गेट 12.044 इंटू 10⁻23। ओके, इतने नंबर ऑफ क्या है भाई उसमें? हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन कितने? फिर हाइड्रोजन तो इतने हैं, बट ऑक्सीजन कितने? अब एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन होता है, इसीलिए ऑक्सीजन इतने ही रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। बी रेडी फॉर द आंसर चिल्ड्रन। आई हैव half mole of I have half mole of water, I have half mole of water, मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मैं पूछूंगी। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, बहुत ही सिंपल है। कैसे सॉल्व करना है ध्यान दो। 1 मोल है 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। अब मैम ने कितने पूछे हैं भाई? 0.5 मोल पूछे हैं, तो 0.5 मोल में कितने? बन गया हमारा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना? करो x इज इक्वल टू, ये तो पता होगा कि x अगर इज इक्वल में लेना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई और ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1। ओके, अब मैं ऊपर का रफ करूंगी।
अब देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे आपको आना चाहिए। अब मैं ये पॉइंट्स को हटा दूंगी। यस यस, वेरी गुड अने। अब मैं पॉइंट को हटा दूंगी। अब मुझे 0.5 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 5। तो मैं यहाँ का पॉइंट यहाँ पे हटा दूंगी, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। नहीं तो आप रेस टू की पावर कम कर दो, ये भी तो चलता है। तो देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या था हमारा 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन क्या था 1 था। मुझे ये पॉइंट हटा के यहाँ पे लाना है, मुझे 5/10 चाहिए। तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 10, 5 1 जा 5 2। तो ये हमारा क्या आ रहा है आंसर 6.022। आगे का नंबर वैसे के वैसे इंटू वाला अपॉन 2 है, 2 से डिवाइड करो, आंसर आता है 3.011। आगे का वैसे का वैसा। तो हमारा आंसर क्या आता है 3.011 इंटू 10⁻23। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये हुआ न्यूमेरिकली मैथमेटिकली बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब मैं आपको लॉजिकल एक चीज समझाऊंगी। यहाँ देखो बच्चों, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.5 मोल मतलब कितना आया भाई, ये उसका हाफ है कि नहीं। 0.5 ये 1 का हाफ है, तो आप इसका भी हाफ कर दो 6.022 का। 6 का हाफ क्या आता है 3, 0 का हाफ 0, 2 का हाफ 1, 2 का हाफ 1, रेस टू की पावर वैसे के वैसे। ये सिंपल लॉजिक है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा यहाँ पे, 3 आउट ऑफ 1। Why 3 out of 1 only? Because you have skipped out the step, like given you have not written, calculations you have not done. Yes, your logic is correct because this is very simple. If 1 is equal to this much, then half is equal to this much only. This logic is very correct. But each and every step carries a marks. Okay? तो चलो मैं आपको और एक चीज समझाऊंगी। अब हमने क्या किया, अगर हमको 1 मोल का अगर 0.5 करना है तो सिंपली हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ये मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया। ये लॉजिक कब काम आता है फॉर मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सिंपली आप ये लॉजिक लगा सकते हैं और आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। चलिए अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मेरा आप सबसे, I have a one bowl, very simple question children. I have one bowl, okay, and in that bowl I have pure carbon in that. क्या है इसमें मेरे पास प्योर कार्बन, राइट। सो ये जो प्योर कार्बन मेरे पास है जो कि एक बाउल में है, ये है मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन। कितना कार्बन है बच्चों मेरे पास बाउल में, मेरे पास है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। तो इस बाउल में कार्बन के कितने एटम्स है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर इन दिस बाउल। काउंट करेंगे क्या, नहीं, एक हिंट मैंने आपको दिया है, बाउल में कार्बन है 1 मोल, ओके, मीन्स हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आई हैव इन दैट बाउल, हाउ मेनी एटम्स आई आस्क्ड, नॉट मास। यस यस, वेरी गुड अनय। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अभी तो पढ़ाया मैंने आप लोगों को। 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर होते। तो मेरे पास कितना कार्बन है, मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, मतलब बाउल में कार्बन के कितने एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन। I have a silver foil. I have a silver foil. ये क्या किया है कौशल तुमने, that is very wrong बेटा। 72 क्या लिखा है आपने, वो चेक that। I have aluminium foil, जिसको मैं बोलती हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल है। I have
1 mole of aluminum foil. So in that 1 mole of aluminum foil, how many aluminum atoms are there? How many aluminum atoms are there? The foil measures the 1 mole, as I told you. It means the foil contain 6.022 into 10 raised to 23 atoms of aluminum. Okay, is this clear? Yes, yes, very good. So 1 mole of anything, children, 1 mole of anything, that is equal to this value. And children, this value is known as, this value is known as Avogadro's number. क्या बोलते हैं इसको? Avogadro's number. कौन सा नंबर बोलते हैं इसको? Avogadro's number. Because this concept was given by, the concept of mole was given by scientist Avogadro's, right? So उसके नाम से ये वैल्यू को पहचाना जाता है, that is Avogadro's number. Okay, one more question, children. I have a beaker containing 2 mole of NaCl. एक बीकर है जिसमें 2 मोल ऑफ NaCl है, तो NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स है उस बीकर में? I will give you 15 seconds. Yes, I got the correct answer from Kaushal. Very good. Waiting for more answers, children. Drop your message in the chat box fast. 2 mole of NaCl in a beaker means how many numbers of NaCl molecules are there? Yes, very good, Anay. Very good, Raghav. देखो क्या करना है, सिंपली हमारा फॉर्मूला याद करो. Yes, very good, very good. All are giving correct answer. 1 mole 6.022 into 10 raised to 23 बराबर है. तो 2 मोल मतलब कितना भाई? 2 मोल इज इक्वल्स टू व्हाट? तो 1 मोल अगर इतना है तो 2 मोल के लिए क्या करेंगे? सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. और अगर एवोगैड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? हर एक वैल्यू को डबल कर दो. 2.044. 6.022 का डबल क्या आता है? 12.044 इंटू 10 रेज टू 23. सीधी सीधी बातें ये समझना चाहिए. अगर 1 का हम हाफ करते हैं तो इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. अगर हम 2 करते हैं तो क्या करना पड़ता है? इस वैल्यू को डिवाइड बाय 2. बहुत ही सिंपल है. अगर हम 1 का 3 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? 1 का अगर 3 करना है तो इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करो. इतना ज्यादा सिंपल होता है ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से, बेसिक मैथमेटिक्स से. ये तो आप सबको आना ही चाहिए. ओके, नाउ चिल्ड्रन, सेकेंड पैटर्न ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, जहाँ पे हम रिलेशन पढ़ेंगे 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास. ये भी एक फॉर्मूला होता है जहां पर एवोगैड्रोस नंबर मेंशन नहीं रहता है बट मास ये वर्ड मेंशन रहता है. ऐसे न्यूमेरिकल में हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं. 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास. कभी कभी लिखा रहता है ग्राम एटॉमिक मास. अब दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है. देखो, एटॉमिक मास के लिए हम यूनिट यूज करते हैं म्यू, और ग्राम एटॉमिक मास के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्राम. बस इतना ही फर्क है. अभी न्यूमेरिकल वाइज समझाती हूँ आपको. अगर मैं बोलूंगी कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ध्यान दो बहुत ही ज्यादा इजी है. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास हमने क्या लर्न किया है टेबल नंबर 3.2 से? 12 म्यू.
ये लर्न किया है 12 म्यू। तो अगर मैं बोलूंगी ग्राम एटॉमिक मास, सिर्फ क्या वर्ड चेंज हुआ है, एटॉमिक मास के पहले मैंने एक वर्ड लगा दिया ग्राम, और कोई फर्क नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये 12 का 12 ऐसे कैसे लिखूंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती है, 12 रिमेन सेम एज इट इज, 12 का 12 ही रहेगा, बट म्यू के जगह पे क्या लग जाएगा, ग्राम लग जाएगा। इतना ही फर्क होता है ग्राम एटॉमिक मास में और एटॉमिक मास में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो एक छोटी सी चीज बताऊंगी आपको, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, ध्यान दो इधर। अगर मैं बोलूंगी कि 1 मोल ओके स्टूडेंट, इफ आई टेल 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर मतलब कितने नंबर बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो हमको पता है कि दिस मेनी नंबर। बट अगर मैंने पूछा कि मेरे पास कितना ग्राम वाटर है, भाई ये बताओ, 1 मोल वाटर तो है मेरे पास, बट वो कितना ग्राम है मुझे ये चाहिए, उसके वाटर के नंबर नहीं चाहिए मुझे, मुझे ग्राम में बताओ कितना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, जैसे मैंने आपको बोला इन केस ऑफ एटम। वैसे अगर मॉलिक्यूल है तो हम यूज करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैंने इनिशियल्स लिखे हैं, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना होता है बच्चों। ओके, 1 मोल ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन किसके बारे में है, 1 मोल इज इक्वल टू, मैं वाटर का मास पूछ रही हूँ, वाटर का मास इन ए ग्राम। तो फिर इनका एटॉमिक मासेस डालो फटाफट। हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का मास 16, टोटल क्या हुआ भाई 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। देखो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको अभी मैं एक कंबाइन फॉर्मूले में लिखूंगी, 1 मोल ऑफ H2O मतलब इतने नंबर कि उसमें H2O के इतने मॉलिक्यूल है, और उनका सबका घुल मिला के मास कितना होता है 18 ग्राम। उनका मास कितना होता है 18 ग्राम। ओके, सो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू दिस मेनी नंबर विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम है तो, नहीं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल है तो। ओके बच्चों, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं हमेशा। 1 मोल इज इक्वल टू हमेशा एवोगैड्रोस नंबर विच इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर एटम है तो उसका मास, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मास। इसीलिए मैंने पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि हाउ टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास, याद है आपको बच्चों। जैसे कि H2O है, मैंने बोला था चलो इसका मास फाइंड आउट करके बताओ। So you have put the atomic mass of hydrogen multiply by 2 is equal to then 16. Okay, atomic mass of ऑक्सीजन यू हैव पुट, सो आंसर आता है 18 ग्राम। यहाँ तक आपने फाइंड आउट किया था, क्योंकि ये स्टेप हमको मोल के न्यूमेरिकल्स में लगती है, इसलिए हमने पहले वो स्टेप पढ़ लिया। अब ये तो मैंने एक ही एग्जांपल लेके पढ़ाया है बच्चों, कल हम और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट इतना इतना इजी हो जाएगा, इतना लर्न हो जाएगा कि आपको ऐसे नींद में भी पूछा जाए व्हाट इज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप वैसे चुटकी में बताओगे कि यस 44। What is mass of water? आप बोलेंगे 18 मैम। What is mass of oxygen molecule? Molecule मतलब क्या, O2 है ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब O2। एक ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2, फटाक से आप बोलेंगे कि मैम 32। इतना प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, और ये एक सिंपल सा स्टेप है जो हमको मोल के न्यूमेरिकल्स में लगने वाला है। तो हम धीरे धीरे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके बच्चों, तो आज हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, बस एक ही चीज आज के लिए याद रखना, एंड व्हाट इज दैट, आज के लिए इतना काफी है। 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, बस इतना याद रखो आज के लिए। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू
this many number. 1 mole of hydrogen मतलब हाइड्रोजन के इतने नंबर. 1 mole of carbon मतलब कार्बन के इतने नंबर. 1 mole of sulfur मतलब सल्फर के इतने नंबर. अगर मैं बोलूंगी 1 mole of apple, 1 mole of apple मतलब कितने एप्पल, मतलब कितने एप्पल. तो okay, students, 1 mole of apple means how many apples? The fruit seller have 6.022 into 10 raised to 23 apples that particular fruit seller have. So 1 mole of anything is equal to Avogadro's number. This much only you have to remember for today's lecture. Tomorrow again we will revise in short. Again we will take some examples related to 1 mole. Then we will discuss some more examples for the half mole, for the 2 mole, and for bigger values. Okay, and then we will go for the complex numericals. Okay, where we have to apply some logic first, where we have to use all 3 formulas together. So such a complex numericals also you have, so that we will also discuss in coming lecture. But for today, remember 1 mole is equals to 6.022 into 10 raised to 23. All right, children. Now the discussion box is open. If you have any